Hello students, myself Rekha Sharma, Associate Professor, Department of Chemistry, RR College Alwar. I am taking online class of MSc Final Organic Special, Semester 1st, Paper 5th, Organic Synthesis. And in today's lecture, I am going to discuss about the guidelines for disconnection approach. The overall aim of retrosynthetic analysis is to get back to starting materials which are available from chemical suppliers and to do this as efficiently as possible. The most important task in a retrosynthetic analysis is spotting where to make the disconnections. एक retrosynthetic analysis का मुख्य उद्देश्य टारगेट मॉलिक्यूल को एफिशिएंटली उन स्टार्टिंग मटेरियल्स में तोड़ना होता है जो कि कमर्शियली अवेलेबल हों, और ऐसा करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है उस बॉन्ड को चूज करना जहां पर कि डिस्कनेक्शन किया जा सके. द फॉलोइंग आर गाइडलाइंस फॉर डूइंग दिस. गाइडलाइन 1, disconnection must correspond to the reverse of real and workable reactions. For every disconnection, we must have a real and workable reaction in mind for effecting the corresponding reconnection or bond formation during the actual forward synthesis of the target molecule. In the case of herbicide 2,4-D, we choose to disconnect next to the oxygen atom because we know about the synthesis of ethers. We chose not to disconnect on the aryl side of the oxygen atom because we know of no real and workable reaction corresponding to nucleophilic attack of an alcohol on an unactivated aromatic ring. Disconnections सदैव रियल और वर्केबल रिएक्शंस के विपरीत दिशा या बैकवर्ड सिंथेसिस को कॉरेस्पॉन्ड करनी चाहिए या उनके संगत होनी चाहिए. प्रत्येक डिस्कनेक्शन के लिए हमारे दिमाग में एक रियल या वर्केबल रिएक्शन होनी चाहिए जिससे कि टारगेट मॉलिक्यूल के वास्तविक फॉरवर्ड सिंथेसिस के दौरान उसके संगत रिकनेक्शंस या बॉन्ड फॉर्मेशंस को संपन्न किया जा सके. फॉर एग्जांपल हर्बिसाइड 2,4-D, इस एग्जांपल को मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था. इसमें हमने ऑक्सीजन एटम के राइट साइड वाले बॉन्ड को डिस्कनेक्शन के लिए चुना क्योंकि हमें ईथर्स को सिंथेसिस करने के मेथड्स पता हैं. इस रिएक्शन के अंदर हमने ऑक्सीजन एटम की अराइल साइड या ऑक्सीजन एटम के लेफ्ट साइड वाला बॉन्ड को नहीं चुना, और इसका रीज़न ये है कि अनएक्टिवेटेड एरोमेटिक रिंग पर किसी अल्कोहल के न्यूक्लियोफिलिक अटैक के द्वारा इसके बनने के लिए हमारे पास कोई रियल या वर्केबल रिएक्शन नहीं है. गाइडलाइन 2, फॉर कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 parts joined by a heteroatom, disconnect next to the heteroatom. This guideline works for esters, amides, ethers, amines, acetals, ketals, sulfides, and so on, because these compounds are often prepared by a substitution reaction. Chlorbenzide is used as acaricide to kill ticks and mites, and using the guideline 2, we can suggest disconnection next to the sulfur atom, and using guideline 1, we know that we must disconnect on the alkyl and not on the aryl side. ऐसे कंपाउंड्स जिसके कि 2 पार्ट्स एक हेट्रोएटम द्वारा जुड़े हों, वहाँ हेट्रोएटम के पास वाले बॉन्ड के को डिस्कनेक्ट किया जाता है, और यह गाइडलाइन ईथर्स, एस्टर्स, अमाइड्स, अमीन्स, एसिटल्स, कीटल्स और सल्फाइड के लिए यूजफुल है क्योंकि इन कंपाउंड्स को अक्सर सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं द्वारा आसानी से बनाया जा सकता है.
फॉर एग्जाम्पल क्लोरबेंजाइड का उपयोग एक्केरीसाइड के रूप में टिक्स और माइट्स को मारने के लिए किया जाता है। और इस सेकेंड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम सजेस्ट कर सकते हैं कि सल्फर एटम के पास वाले बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करना चाहिए। और सिमिलरली गाइडलाइन 1 के अकॉर्डिंग हेटेरो एटम की अराइल साइड के बजाय हम उसकी एल्काइल साइड को डिस्कनेक्ट करेंगे। The retrosynthetic analysis of chlorobenzide can be shown by the following reaction. And we can now suggest reagents or synthetic equivalents corresponding to the synthons and can suggest a systematic scheme for chlorobenzide. And similarly, suggested or designed synthesis of chlorobenzide can be given by the following reaction. We are not expected to predict which base would be used for this reaction. However, sodium ethoxide in ethanol is actually used for carrying out this reaction. This is mentioned here just to give an idea of the base strength required to deprotonate a thiol. क्लोरबेंजाइड के रिट्रोसिंथेटिक एनालिसिस को हम इस रिएक्शन के द्वारा दर्शा सकते हैं। और इसमें इस टारगेट मॉलिक्यूल के कार्बन सल्फर बॉन्ड के डिस्कनेक्शन से हमें ए और बी दो सिंथॉन्स प्राप्त हो रहे हैं। और इन सिंथॉन्स के संगत एक्चुअल रिएजेंट्स या सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स सजेस्ट किए जा सकते हैं। सिंथॉन एक के कॉरस्पॉन्डिंग सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा एक थायोल सी, जो कि सल्फाइड एनायन पर एक H+ आयन को जोड़ने से प्राप्त होगा। और इसी प्रकार सिंथॉन बी, जिसका कि कॉरस्पॉन्डिंग सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा डी, और ये कैटायन पर एक Cl- या क्लोराइड माइनस आयन के जोड़ने से प्राप्त होगा। अब हम क्लोरबेंजाइड, जो कि एक थायो ईथर है, उसके लिए सजेस्टेड या डिजाइंड सिंथेसिस को इस रिएक्शन के द्वारा दर्शा सकते हैं, जिसमें हमारे स्टार्टिंग मटेरियल्स होंगे सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स या एक्चुअल रिएजेंट्स C एंड D, और ये दोनों रिएजेंट्स बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट कर टारगेट मॉलिक्यूल क्लोरबेंजाइड बनाएंगे। इस डिजाइन सिंथेसिस के अंदर कौन सा विशिष्ट बेस यूज होगा, यह इस सजेस्टेड सिंथेसिस में बताना या मेंशन करना आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी एक थायोल को डिसप्रोटोनेट करने के लिए इथेनॉल में सोडियम इथॉक्साइड या C2H5ONA का यूज किया जाता है।